Very good morning to all. Yes, I am Professor Samita Shinde. We will continue with the SP concept. Today we will see different concepts. Before that, I'll just revise last class what we have done. We are completed in the last class the term called secretary, joint stock company, limited liability, promoter and CIN. So this is already done in your last class. Now this is just for the information. This is just for your revision purpose because you have to remember all these concepts when you are doing your SP subject. Yes. So now we will begin with your memorandum of association. At the time of incorporation of a company, two important documents have to be submitted to register of companies. That we know that every company must be registered. हमें ये पता है कि हर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. ये रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है? जब आपको कंपनी मार्केट में लाना है तब आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ये रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना है? ROC के साथ. दैट इज योर रजिस्टर ऑफ कंपनीज. नाउ ये जब रजिस्टर होता है, कंपनी कोई भी रजिस्टर होती है, एनी कंपनी वांट्स टू रजिस्टर, दे मस्ट हैव टू इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, नेमली your memorandum of association. It is also known as a MOA. And second document we will see in the next point, that is your articles of association. In short, it is called as your AOA. Now we will move one by one. What is the memorandum of association? It is a primary document of a company and as it states the purpose for which the company is a form. ये कौन सा डॉक्यूमेंट है कंपनी का? प्राइमरी डॉक्यूमेंट है. प्राइमरी वर्ड आपको सबको पता है. प्राइमरी यानी ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ही. और ये क्या है? ये कौन सा काम करता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन जैसे काम करता है. जैसे हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं. द सेम इट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी कैन अंडरटेक. ये क्या डिसाइड करता है? ये क्या डिस्क्राइब करता है कि आपकी कंपनी को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है. दैट ऑल शुड बी मेंशन इन योर memorandum of association. Now here I included one definition for better understanding. So that is your that definition is given by Lord Cairns. The memorandum of association of the company is its a charter. यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है चार्टर का, यहाँ पे ये सुटेबल लगा मुझे. कॉन्स्टिट्यूशन and defines the limitation of the powers of the company. ये कंपनी को लिमिटेशंस देता है कि इनको क्या करना है. And this is act as a primary document. This is a charter of the any company. या कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का. ये आपको करना है या आपको नहीं करना है. जैसे हमारे इंडिया में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, आपको करना है या आपको नहीं करना है. यस, तो सेम यहाँ पे कंपनी के लिए भी there are some rules, regulation. So that should be mentioning where your articles, memorandum of association. As per their definition, this definition, what does it mean? Memorandum is a document which describes the constitution of the company. Yes, of course, this describes the constitution of the company and its rights or privileges. It states the power of a company, that is what it can do and what it cannot do. ये कंपनी को हमेशा बताता रहता है ये डॉक्यूमेंट कि आपको क्या करना, बताता है यानी आपके सामने नहीं आता. इट ऑलवेज इंक्लूडेड इन दैट डॉक्यूमेंट कि व्हाट द कंपनी हैज टू डू इट एंड व्हाट द कंपनी हैज टू कैन नॉट डू इट. यस, टिल दिस आई होप एवरीवन क्लियर. नाउ आई विल मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट which needs to be filed with the ROC. along with what? किसके साथ आपको सबमिट करना है? MOA के साथ. जैसे MOA चाहिए वैसे कंपनी को क्या चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चाहिए. MOA मीन्स व्हाट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तब आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. This document is a secondary to the memorandum. Yes, ये चाहिए, बट ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? सेकेंडरी. यहाँ तक कुछ डाउट होगा? Okay. Now we will begin with the next. It defines next point.
दैट इज इट डिफाइंस द पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, ये क्या क्या डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट, पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स and also the manner in which the business of a company will be carried on. कंपनी का बिजनेस में, कंपनी के बिजनेस, आपका जो कंपनी है वो कंपनी के लिए जो जो एसोसिएट है आपकी कंपनी से, उन सबको कौन से डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, आपका आर्टिकल्स। और यहाँ पे क्या क्या मेंशन होता है, पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ किसका, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। Yes, इनको सबको क्या क्या पावर्स, इनके पावर्स, राइट्स, ड्यूटी should be mentioned in where, in your articles of association. Articles of association is a secondary document. Yes, but it is required. Now I'll begin with the next concept, that is your prospectus. Now the word prospectus, we have always heard this word. Yes, am I clear? Now before moving to concept, I'll just give an example. आप कोई भी कॉलेज में, सपोज आप जो कॉलेज में हो तो आपको दूसरी कोई कॉलेजेस देखना होगा क्या, ये कॉलेज कैसे है, वो कॉलेज कैसे है, मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ क्या, तो आपको कैसे पता चलेगा, एक तो आप इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी करके आप पूछ लोगे या उनके वेबसाइट पे देखोगे, यस, या वहाँ पे आप जाके देखोगे, तो आपको जाके देखोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है क्या, उसमें आपके वो जो कोई स्कूल है तो उसका नाम होता है, उसके प्रिंसिपल का नाम होता है, फिर उनके चेयरमैन का नाम होता है, स्कूल या कॉलेजेस के डिटेल्स होते हैं, उनकी इवेंट्स होते हैं, उनकी फैकल्टीज के नाम होते हैं, उनका इंटेक होता है. सो दिस इज व्हाट जनरल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर टेकिंग योर एडमिशंस. So whenever the public wants to purchase and the shares, the company has to issue one document and that document is called as a prospectus. यहाँ तक कुछ डाउट है? When a public company is collecting capital by issuing shares to the public, has to issue a document is called as a prospectus. So public company क्या करती है, जब मार्केट में आती है तब क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट लाती है और वो डॉक्यूमेंट को आप क्या कहोगे, प्रोस्पेक्टस. Prospectus is a document which contains information about the various aspects about the company and invites the investor to buy the securities offered by the company. So prospectus is what? It is containing what? Information. यहाँ पे information होता है किसका, कंपनी का. In the about the various aspects, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एंड इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स टू बाय द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द कंपनी. ये जनरल क्या होता है, इनविटेशन होता है किसको, आपके पब्लिक को, आप जैसे पब्लिक को, हमारे जैसे पब्लिक को, कि आप ये पढ़ो, एनालाइज करो, आप खुद से सोचो आपको इन्वेस्ट यहाँ पे करना है या नहीं करना है. यस, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कंपनी का. The prospectus must contain the true and the factual disclosure as the investors to decide to invest based on the information given in the prospectus. ये जो इंफॉर्मेशन होता है वो कंपनी को कैसे डालना है, ट्रू, रियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए. और जो फैक्ट्स, फिगर, जो आप अमाउंट डालते हो, जो कुछ प्रॉफिट्स लिखते हो या जो कुछ आप परसेंटेज डालते हो, तो वो आपको क्या चाहिए, आपका रियल चाहिए. You don't want fake. Why you are not supposed to write a fake information? फेक इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप ये ऐसे कंपनी के ऊपर भरोसा रखोगे कि एज अ इन्वेस्टर आप इसमें आपका पैसा डाल रहे हो और फेक इन्फॉर्मेशन है, बाद में पता चला, तो आप उसमें से क्या करोगे, डेफिनेटली यू कैन टेक योर मनी. यस, तो यहाँ पे prospectus must contain a true and factual disclosure. यहाँ तक prospectus point is clear to everyone? Yes. Now we will move to your next part, that is your member part. Yes, I hope last year you have done with the member, but I'll again included member here. So what is the member? Yes, आप सब लोगों को institutions पता है, हाँ, और आपको sectors भी पता है.
हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स, एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन आईटी है, आपका स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। यस, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री है? आप लोग बाहर से उसका स्ट्रक्चर देखते हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर एंड विच इज अ नॉन लिविंग थिंग। स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, कंपनी होती है बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो इसको लिविंग करने के लिए आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बट ये सब होने के बाद यू नीड अ ह्यूमन बीइंग। यस, आपको पर्सन चाहिए। सो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, तो उनको आप लोग क्या कहोगे? मेंबर कहोगे। द पर्सन एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म एज अ मेंबर्स। I'll again repeat, the persons associated with an organization are termed as a member. It can be rightly said that the organization by its members, yes, of members and for the members. ये members ही चलाते हैं, members के लिए होता है और members ही देखते हैं. So this is your members. Now here what is mentioned? Member means a person whose name is entered into the register of a members of the company and also includes holder of equity shares whose name is entered beneficial owner in the records of the depository. Now members means what? जिसका नाम आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है और उसने क्या किया है, उसने शेयर इक्विटी शेयर्स भी लिए हैं। सो बेनिफिशियल ओनर जो कोई है तो बाय रूल उसका नाम रजिस्टर में होना चाहिए। सो दैट मीन्स ये रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? आपकी डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी आप लोग ये साल पढ़ने वाले हो इन डिटेल। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी दो होते हैं, CDSL एंड NSDL। तो ये आप बाद में पढ़ोगे, हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ऑन दैट टाइम यू कम टू नो। नाउ नेक्स्ट important concept is a transmission of shares. Now this is a very important. जब आप शेयर्स लेते हो तब आप उसको ट्रांसफर करते हो। यस, तो ट्रांसफर हम लोग नॉर्मली करते हैं कि मिस्टर ए के पास जो शेयर है तो मिस्टर ए को मिस्टर ए के शेयर्स मिस्टर सी को लेने हैं, तो मिस्टर सी क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वो शेयर्स ले लेगा। ये नॉर्मल ट्रांसफर हुआ। उसमें क्या होते हैं? पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। पार्टीज यानी क्या? मिस्टर ए इज अ पार्टी एंड मिस्टर सी इज अ पार्टी, दे आर इन्वॉल्व हियर। तो ये नॉर्मल आपका ट्रांसफर हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? वी विल सी दैट। तो ट्रांसमिशन मीन्स व्हाट? यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर होते हैं बट यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है? आपका लॉ इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया है, शेयर्स ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द इवेंट्स ऑफ डेथ होने के, किसी की डेथ होने के बाद, इंसॉल्वेंसी होने के बाद एंड इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अभी फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है, मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर और उसका अचानक से डेथ हो गया, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके बाद, आर यू गेटिंग मी? उसके बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी कोर्ट ने डिसाइड किया होगा या बाय लॉ आप लोग उसको हेयर करते हो या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो आप उसको क्या कहोगे? डेफिनेटली उसको ही सब मिलता है। सो फॉर दैट पर्पस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, उसको क्या हो जाता है? शेयर्स ट्रांसफर हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफर होता है बट यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? आपका लॉ। नेक्स्ट इज द ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अभी इंसॉल्वेंसी आप सब लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। यस, तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर डिसाइड किया जाता है, तो और ये कौन डिसाइड करता है? आपका लॉ डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल रिसीवर, उसको क्या मिलते हैं? या उसको शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, द एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ insanity replace the concerned member. Yes, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को क्या हो जाता है? शेयर्स ट्रांसफर। So in today's class, in concept class, we already completed. Yes, what we have completed, are you remember it? क्या क्या दिखा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, prospectus, member and transmission of shares. So this concept I tried to clear you. If you have any confusion, you can ask me and you can subscribe my channel also. Thank you for listening. Thank you class.